Good evening, everyone. This is my third video, and in the previous video, we talked about semicircle. We talked about the perimeter of semicircle, the circumference of semicircle. We discussed about the area also. I just told you what is this area of a circle is actually. We talked about the formula for area of a circle, and now we'll just continue that topic only. We just going to focus on the circle part as far as area is right now concerned, and if time allows me, then I'll try to cover the next topic also in this video. Otherwise, I'll be doing the next topic in another video. I hope everybody is fine and enjoying everything. Enjoy your studies. And if you don't understand anything related to mathematics, you can ask in comment section. Okay. And please like and subscribe. If you don't wish, please don't do that. Alright, let's come back to the studies. Now we were discussing about the area of circle. In the previous video, I told you, I've explained you what is the area of a circle, what is the formula for area of circle, and what is that, how do we write that formula, because many students get confused when we put power on some variable. So I've explained that also. So area of a circle is actually pi r square. I've told you pi is the value which Archimedes has discovered, and r square means r into r. Fine. This much was done. Let's move ahead. Now we have different. We can say different formula for set figures related to circle. Second is area of semicircle. It is obviously semicircle is half circle, so area of circle will be half the area of a circle. Alright. So this is area of circle divided by 2. This is the area of semicircle. And I've told you how this semicircle is drawn. Just draw circle, make a diameter, and then remove the lower portion. So this is your semicircle. So the value portion that I have shaded is your area. Okay, this is the diameter with center O. So this whole section inside the region which is inside the boundary of this semicircle is the area, and the formula for this is pi r square by 2. We have one more you can say standard formula for circular part only. Now here I have taken full circle, then I have taken half circle, then I will take 1/4 circle. 1/4 circle is called as quadrant. It is called as quadrant. So area of a quadrant. So area of quadrant, it is 1/4 of the circle. So the area of the quadrant will be 1/4 of the area of the circle. Obviously, common sense. So area of circle divided by 4. Now how will you see, how does this quadrant of a circle look like? So see, I'll draw a circle and I have a center, and now I'll draw two diameters which are perpendicular to each other. Now when I say perpendicular, it means those two diameters have 90-degree angle between them. Okay. So obviously I'll draw one horizontal diameter and one vertical diameter.
So this is your horizontal diameter, this is your vertical diameter. So here you can see that the whole circle is being divided into 4 parts. They have been divided into 4 parts. The circle को हमने 4 equal parts में divide कर लिया है. अब ये 4 equal parts कैसे हुए? मतलब ज़रूरी है कि कहीं ये बड़ा हो गया, कहीं ये बड़ा हो, कहीं कोई भी बड़ा हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एंगल पे फोकस करना है. ठीक है. अगर मैं पूरा एंगल लूँ एक रोटेशन में तो वो 360 डिग्री एंगल्स होता है. और यहाँ पे जैसे भी आपको मैंने बताया कि डायमीटर्स का जो एंगल है उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. ये सिंबल 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए और ये भी 90 होना चाहिए. देखिए सारे एंगल्स आपके इक्वल हैं. और अगर मैं इतना पोर्शन लूं, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस रेडियस. और जैसे कि आपको पता है सर्कल में रेडियस जो है इक्वल होता है, रेडियस तो डिफरेंट होगा नहीं. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग एंगल पे फोकस करते हैं. तो आपके सारे एंगल्स अगर इक्वल हैं तो सारे पार्ट्स इक्वल हैं. फाइन. आई होप दिस इज क्लियर हाउ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड each part is known as quadrant. Okay. So let me draw it bigger so that you can see. So I'll remove all this thing and I'll take only one portion. That is the quadrant. Okay. So this is your quadrant. This is your quadrant. And the area, the region inside the boundary of this quadrant is the area of the quadrant. So the value for this region is pi r square by 4. Clear? Area of a circle, area of a semicircle and area of a quadrant. Fine? Now इसमें एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वो कह सकता है कि area of a circle is this. Can you tell me the area of a quadrant of a circle? तो कुछ नहीं आपको करना है, आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है एरिया ऑफ अ सर्कल को 4 से. वाई? क्योंकि सर्कल में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4. वी आर जस्ट गोइंग टू डू one न्यूमेरिकल ऑन ईच फॉर्मूला. जस्ट वी नीड टू जस्ट पुट द फॉर्मूला. ओके. इसमें और कुछ नहीं करना, बस मैंने डायग्राम आपको बना के दिखा दिया है कि कैसे दिखता है वो. क्योंकि जब डायग्राम आपको समझ में आ गया तो फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं. 1/4 होगा, सेकेंड होगा, हाफ होगा, 2 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, कैसे होगा, क्या होगा. यू हैव टू जस्ट रिलेट ऑल द फॉर्मूले विद द एरिया ऑफ अ सर्कल. ठीक है. सेमी सर्कल क्या होगा? हाफ होता है सेमी सर्कल. सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कल, तो एरिया भी हाफ होगा. सो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय 2. क्वाड्रेंट क्या होता है? 1/4 होता है सर्कल का. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय. यू कैन राइट फॉर्मूला इफ यू वांट. बुक में मेंशन होता है तो लिखना है, लिख लीजिए. ठीक है. आई होप यू हैव नोटिस्ड दिस. तो ये 3 फॉर्मूले तो आपको आ गए, सेट हैं पूरे, मतलब दिमाग में सेट हो गया कि हाँ ये 3 फॉर्मूले होते हैं. अब इसमें 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आगे थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, तो फिर उस पर काम करेंगे. ठीक है. इसका तो मैंने आपको बता दिया था. ठीक है. इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे पॉज करके, फिर उसके बाद में सॉल्व करूँ.
देखिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है और आई एक्सपेक्ट कि आप लोग आसानी से कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्मूला दिया है कि सीधे आप आंसर नहीं पा सकते हैं, घूम फिर के आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि करना क्या है एक्चुअली में। तो पॉज करिए, उसको ट्राई करिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। बहुत सारे वेज आपने, बहुत लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट वेज फाइंड आउट किए होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। पहले आपको क्वेश्चन में देखने की दिया क्या है एक्चुअली और निकालना क्या है। दो चीज आपको देखनी, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। ऑलराइट, so as you know the question is find the area. So area निकालना है मुझे सर्कल। एरिया किसका निकालना है? सर्कल। ठीक है, whose circumference is 66 सेंटीमीटर और दिया क्या है? circumference। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आप गिवन लिख सकते हैं। ये मेरा मेथड है लिखने का, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गिवन में क्या है हमारा? सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है? मैंने पढ़ाया हुआ फर्स्ट लेक्चर में। इट इज 2 पाई आर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 66 बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ इस रिलेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ? आर की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? देखिए, अच्छा मैं आर ही क्यों निकाल दूँ? पहले ये तो पूछना पड़ेगा आपको। why we are just taking out r first? To find out area we need radius of a circle. So that is our main focus. Why we are finding r? Okay. Why? Because area of a circle is pi r square. पाई की वैल्यू पता है आपको, आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसीलिए मैं यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पाई आर इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। अब इसमें मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, देखूंगा इनटू साइन कहाँ है, डिवाइड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, क्या करना है, वैल्यूज पुट करूंगा और कुछ नहीं करना है इसमें। बस ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो फॉर्मली बेस्ड है, एक बार आप समझ जाएं। अब देखिए यहाँ पे जो 7 है वो नीचे है, इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ। तो इक्वल टू के इस तरफ हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और इक्वल टू के इस तरफ क्या होगा? राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये राइट हैंड साइड पे है। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? आर निकालना है, तो इसको मुझे अकेला करना पड़ेगा। तो इसके साथ जो इसके भाई बंधु हैं, जो भी सिस्टर ब्रदर्स हैं, सबको उधर भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी होगी। अगर इस तरफ ये डिवीजन साइन में है, कोई भी मतलब नंबर डिवीजन में है, तो उस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरफ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। ये दो चीजें याद करनी है। इधर जो डिवीजन में है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जो मल्टीप्लिकेशन में है उस तरफ डिवीजन में चला जाएगा। समझ में आ गया होगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा फिर से देख लीजिएगा एक बार। ठीक, 22 11 2 22, 11 6 2 1 2 3 it is 21 upon 2 centimeter. So this is the radius. अब रेडियस आ गया, समझो एरिया आ गया। सिंपल फॉर्मूला यूज करिए, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। सो एरिया is pi r square. Pi is what? 22/7. R square means what? R into R.
एंड आर आपको पता है। सेवन थ्री 2 1s 11s 33 into 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया का जो यूनिट होता है पावर लग जाएगी वहां पे, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले हमें मुझे पता करना कि दिया क्या हुआ है। तो सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, फॉर्मूला लिखो उसका, उसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो ये इक्वेशन बन गया आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। इसको उठा के मैंने निकाल दिया यहाँ पे आर की वैल्यू। अब क्यों आर की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे एरिया निकालने के लिए आर चाहिए, ठीक है। फिर क्या किया, आर की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करना है, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एरिया ऑफ अ सर्कल आ जाए। अब आर आपके पास है तो एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल भी निकाल सकते हो अगर आर ये है। फॉर्मूला पुट करो, पाई आर स्क्वायर बाय 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकाल सकते हो अगर आर 21/2 है। क्या होगा, आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। ओके, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे और आज का लेक्चर खत्म करेंगे। एक यहाँ पे टॉपिक आएगा कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक मीन्स you can say con means common, center means circle whose centers are common. The circles whose centers are common. Okay, so let's say this is center and this is circle 1 whose radius is r1. Now I can have more circle by increasing the radius but keeping the center same. So let's say this is another circle. Now this circle, this is circle 2, its radius will be taken from this center only, no other center is there. Concentric circle means the circles having same center. तो यहाँ से हम देखेंगे ये वाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा r2। ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं, r3, r4, infinite number of concentric circles can be made. Okay? So concentric circles आपको पता होना चाहिए होते क्या हैं. Fine. This is circle 1 and this is circle 2. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जो सर्कल 1 है उसका एरिया आपको दिया हुआ है. So area of circle 1 is how much? Let's say this is 314 meters. This is area of a circle 1. Now area of circle 2 is also given to you. ये आपको दिया हुआ है और पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल 1 एंड सर्कल 2. तो ये जो स्टेटमेंट है, द रेशियो ऑफ रेडियस 1 एंड रेडियस 2 और द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल 1 एंड रेडियस ऑफ सर्कल 2, इस रिलेशन को, सॉरी इस स्टेटमेंट को आप पहले मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे.
तो उस लेट्स से मैं इसमें लिखता हूँ फाइंड द रेशियो ऑफ radius of circle 1 and circle 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रेडियस जो सर्कल 1 का है वो ऊपर आएगा और रेडियस जो सर्कल 2 है वो नीचे आएगा। मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब आप थोड़ा सा सोचिए फिर बताइए। ओके, सो अब मुझे देखना है कि मुझे निकालना क्या और दिया क्या गया, ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो एरिया 1 जो है, क्या मैं लिख सकता हूँ पाई आर 1 का स्क्वायर। ये 1 जो है नाम है, ठीक है, और स्क्वायर आपको पावर है। एंड दिस इज वी कैन राइट एज पाई आर 2 पावर 2। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इससे मतलब नहीं है आपको, ये बस मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये नाम नहीं है, ये रेडियस 2 है। इसको मैं आर बी भी लिख सकता था, आर सी भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे जो ये पावर हमेशा रहेगी एरिया के टर्म्स में, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, R1 बाय R2 चाहिए। अगर मैं A1 बाय A2 करूं तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या है, ठीक है। A1 बाय A2, A1 क्या है, हम पहले फॉर्मूले पे देखेंगे क्या है, पाई R1 स्क्वायर, और A2 क्या है, पाई R2 स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरिया 1 बाय एरिया 2 इज इक्वल्स टू R1 बाय R2। अब दोनों में स्क्वायर है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट चैप्टर, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय b होल स्क्वायर। शायद याद आ रहा होगा आपको। नहीं आ रहा तो आप एक्सपोनेंट चैप्टर में जाके उसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको।